by the plane of dash 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 family. They landed at Munsiganj. They traveled in BMW of that dash 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 family, and they saw Amethi through the eyes of the representative of that family. That Contract. is why they always say bastion. Maybe before going to Amethi, I was also in the impression that it was a bastion of Congress party. But once you visit Amethi, I request everybody to please go to Amethi and see the groundwork done by the previous member of parliaments in Amethi. True. Now that we have spoken about the development aspect of Amethi, now one major question that I had in my mind was, of course, caste and religious politics are definitely played out by all parties. The entire strategy is developed based on the caste calculus of a particular area for garnering votes, of course. So, from your observations of BJP RSS's machinery in Amethi, how does caste and religion influence the machinery? How does caste and religion influence the team, the BJP RSS machinery entirely in Amethi? What was your experience there, personal experiences? Siddharth, my simple question to your answer. I want to ask a question to you. Can you can you tell me the caste of Smriti Irani? She is a Punjabi Brahmin, Combination. married to a Parsi. micro minority Parsi, and उनके जो फादर थे और उनकी वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. He was Malhotra, and mother is from Bengal. Husband is a Parsi. So can you tell me the caste of Smriti Irani? Very confusing. True. है ना? So caste, मैं मानता हूं कि caste plays a very important role in Indian elections. But this time Amethi got a candidate जिसके caste के बारे में सब लोग कंफ्यूज थे कि इनको क्या कहा जाए. But still RSS, BJP and the other organization affiliated to BJP and RSS like Yuva Morcha, Mahila Morcha and all, उन्होंने they created 8 verticals. Irrespective of caste, they created 8 verticals of the persons basis on their work. Like बुद्धिजीवी सेल बनाया उन्होंने, व्यापारी सेल बनाया उन्होंने, महिलाओं के बीच काम किया उन्होंने. इस तरह 8 वर्टिकल्स में काम किया, which I mentioned in detail in my book. तो ऑब्वियसली कास्ट के प्लैंक पे अगर खेलते तो थोड़ी दिक्कत होती, बिकॉज सी इज नॉट ए ब्राह्मण, सी इज नॉट ए ठाकुर, सी इज नॉट ए दलित. तो उत्तर प्रदेश में विदाउट बीइंग दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी, यू आर गोइंग टू फाइट Gandhi families. You are going to fight with a नुमाइंदा of Gandhi family, right? तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है. लेकिन आरएसएस के लोगों ने, आई हैव रिटन ए सेपरेट चैप्टर इन माय बुक about the strategy of RSS. It's entirely independent chapter based on the work done by the RSS प्रचारक and RSS पूर्णकालिक, जो होल टाइमर्स होते हैं उनको आरएसएस की शब्दावली में पूर्णकालिक कहते हैं. तो these are the things on which, and the role of shakhas. They दिल्ली हमारी, there was a play, दिल्ली हमारी played in shakhas, and you can imagine that from 600 or 1000 shakhas in the morning एक ही आवाज आती थी for months, दिल्ली हमारी. तो मतलब इन छोटी छोटी चीजों को मैंने कोलैबोरेट किया कि कैसे इसने माहौल बनाने में मदद की, और संगठन के तौर पर आरएसएस ने बहुत काम किया. और उसने, बीजेपी अलग काम कर रही थी, आरएसएस अलग काम कर रही थी, और स्मृति ईरानी की टीम अलग काम कर रही थी. और स्मृति ईरानी इन तीनों के बीच में एक कड़ी के तौर पर काम करती थी, और उनका ही फीडबैक फाइनल होता था. वो जैसे चाहती थी
मुझे उनके आसपास के लोगों ने बताया कि डिस्कशन के बाद स्मृति ईरानी ने ही स्ट्रेटजी सारा तैयार किया था कि कैसे हमें ये इलेक्शन लड़ना है. So it is the entire combination of the efforts of all each entity that culminated towards. But finally, it was her points, finally her ideas that really came out, and the overall execution worked in that way. So talking about Smriti Irani ji, a TV star, a non-political person until 2003, and somebody, let's say in India, right? I mean, I don't think this would be a political correct term or something, but to be very candid, women in Indian politics is a rare phenomenon, I believe, if you take the numbers alone, even in the previous stages before 2014. So even that being the case, she was fielded in Chandni Chowk constituency against a heavyweight like Kapil Sibal, and BJP did the same thing. And after losing, BJP gave her one more chance in Amethi to go against, well, again the Congress bastion at that time. What the news? Again a so-called heavyweight. Heavyweights, yes. So, what would your thoughts be on the BJP's outlook with respect to this particular strategy? The story of 2004 election is entirely different. वो क्यों वहां से फील्ड की गई थी इसके बारे में मैंने किसी से पूछा नहीं. आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल थिंग. आई डोंट नो अबाउट द ऑफिशियल वर्जन ऑफ बीजेपी व्हाई शी वाज फील्डेड फ्रॉम अमेठी. पर उस समय मैं रिपोर्टिंग में था, ये कहा जाता था कि बीजेपी चाहती थी कि इनकी बहू वाली छवि को भुनाया जाए. एंड उस समय वो क्योंकि सास भी कोई बहू थी कि लोकप्रियता जो सीरियल वाज एट द टॉप ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी. कितने सालों से वो टीआरपी चार्ट पे नंबर 1 रही है. तो बीजेपी चाहती थी कि उसको बनाया जाए चांदनी चौक में, बट दैट स्ट्रेटजी डिड नॉट वर्क. उस समय एक दूसरी बात भी होती थी कि कुछ नेताओं ने स्मृति को फंसा दिया और उस स्मृति को कपिल सिब्बल के आगे चुनाव लड़वा दिया. और खैर वो तो आप जानते, यू नो दैट लॉट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वर्क्स इन राजनीति एंड पॉलिटिक्स, और ये खान मार्केट में और यहाँ तो इस तरह की बातें ज्यादा चलते भी रहती हैं. तो लेकिन जब वो 2014 में अमेठी गई तो तब तक वो काफी मैच्योर हो चुकी थी. वो पार्लियामेंट की मेंबर हो चुकी थी, वो महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, वो बीजेपी की सेक्रेटरी रह चुकी थी. तो उनका राजनीतिक अनुभव अगर 2003 से देखें 2014 तक, फ्रॉम ए कार्यकर्ता टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा. तो ये 2003 से 14 तक को अगर आप देखें तो 11 सालों का अनुभव कम नहीं होता है राजनीति में. और इसमें मैं बड़ी एक हल्की सी बात कहता हूं, कई बार लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं हमसे, कि राहुल गांधी इज 51 एंड स्टिल यंग एंड स्मृति ईरानी इज 45 बट दीदी हैं वो. तो ये अगर आप देखें तो अनुभव, अगर राहुल गांधी के पास कितना अनुभव था व्हेन ही केम टू पॉलिटिक्स, मुझे लगता है 2004 में ही आए थे वो भी राजनीति में. तो अगर उस लिहाज से देखें तो राहुल गांधी उम्र में जरूर स्मृति ईरानी से बड़े हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव में 1 साल कम है या लगभग बराबर है अगर आप उसको माने तो. इस तरह से देखें तो, है ना. तो वो भी 2000 के बाद ही आए होंगे मुझे जहां तक याद पड़ता है. तो क्योंकि 2004 में वो पहली बार सांसद बने थे. तो अमेठी से ही फाइट इलेक्शन इन 2004 व्हेन सोनिया गांधी वेंट टू नहीं 2004 में लड़े. हाँ 2004 में लड़े. तो या इसको चेक करने की जरूरत है, बट मेरा कहना है कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों का राजनीतिक अनुभव करीब करीब बराबर है. लेकिन हम जब when we analyze these things, we think that Rahul Gandhi come from a family background जो कि 53 साल से राजनीति कर रहा है. तो हम ये मान लेते हैं कि राहुल गांधी को भी इतना ही लंबा अनुभव होगा. एंड ए लेडी कमिंग फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनके हम सालों को गिनने लगते हैं.
तो ये थोड़ी सी ये सब जगह एनालिसिस की दिक्कत है, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। यही इंडियन पॉलिटिक्स में यही चल रहा है। बैस्टियन ऑफ गांधी फैमिली कह दीजिए आप, रायबरेली को भी। तो उसमें अगर आप देखें तो राहुल गांधी के मार्जिन को देखना चाहिए, वोट शेयर को देखना चाहिए, कितने एमएलए वहां से कांग्रेस के जीतते आए हैं, कितने जनसंघ के जीतते हैं। अगर इफ यू इन द लास्ट चैप्टर आई एनालाइज द इलेक्शन सिनेरियो ऑफ इंटायर उत्तर प्रदेश, उसमें अगर आप देखेंगे तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जनसंघ की प्रेजेंस वहां काफी मजबूत रही है, और उनके एक दो 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 तीन तीन विधायक लगातार वहां से जीतते रहे। और ये तो कांग्रेस पार्टी के बैस्टियन तो ऐसा था कि जब अखिलेश वाला चुनाव हुआ था, मुझे लगता है 2017 या 2022 में कभी, सॉरी 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, या 2012 में, सारी सीटें कांग्रेस हार गई थी इन दोनों में से किसी एक में। तो ये कैसा बैस्टियन था? मुझे लगता है कि अमेठी की जनता प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो हमें जो विकल्प के तौर पर हमें भरोसा दे सके और हम उसको वोट दे सके। Got it. Yes, true. And now the bastion word is, I think it's really catching on now. The Congress bastion word. But then we'll probably, by the end of it, we'll really know whether it was a bastion or not after the discussion. For that you and your friends जो connected in this webinar have to read this book. I have explained in detail that it was never be a bastion of Congress party since 1967. Yes. Of course, but the thing is, it's been shown so much that we have to definitely use that word enough to make people understand that it is not. We have to reprogram the word. People of Amethi have shown this. वहां की जनता ने बता दिया। I have only documented the facts. I have only documented the sentiments of the people of Amethi. मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, मैंने एनालाइज भी नहीं किया है। You know, Siddharth, there was a huge agitation in 2009 in Amethi regarding the electricity supply. आप कल्पना कर सकते हो, you can imagine that जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो और जिसका प्रधानमंत्री हो, और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के ऑडियंस को फाड़ के फेंक देता हो इन द प्रेस क्लब, the person who tore down the ordinance of government of India, उसके लोकसभा क्षेत्र में बिजली एक सप्ताह दिन में आती थी और एक सप्ताह रात में आती थी। कैन यू इमेजिन दैट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम, है ना, 1 week in a day and 1 week in night. So there was a huge agitation for electricity in Amethi in 2009. The impact of this agitation you can see on the ground till date. So you got to work with, you got to learn, you got to research into a person who's built herself from let's say the initial failures, and who has built herself. And what are some of the, as a general question, what are some of the traits that you've seen while observing her? What are some of the traits that you believe made Smriti Irani ji who she is today? I never worked with Smriti Irani. No, but for writing this book, I met her for only 12 minutes. No, but while researching, what are your thoughts? And while researching, I followed Smriti Irani since her television days. है ना? So when she joined, I was there in the BJP office when Mukhtar Abbas Naqvi and Gopinath Munde and Smriti Irani was on the dais, 11 Soka Road in Delhi. At that day, I was there in the BJP office. I have seen joining her BJP. लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि वो उनकी जर्नी काफी धीरे धीरे मैंने ट्रेस कम किया थोड़ा. बट वाइल रिसर्चिंग दिस बुक आई रिफ्रेश्ड माय मेमोरीज, आई टॉक टू द पीपल, और उनके आसपास रहने वाले लोगों से मैंने बात किया. कुछ लोगों ने उनके अनुभवों के बारे में बताया कि कैसे स्मृति ईरानी मतलब किस फैमिली बैकग्राउंड से आती थी. हर नाना वाज स्वयं सेवक, तो वो शी वाज वेरी क्लोज टू हर नाना.
वो स्वयं तो सेवक। हाँ, वो ही वॉज ए स्वयं सेवक। और इनको जो ये आरएसएस का संस्कार मिला है, ये अपने नाना के माध्यम से ही मिला है। नाना के साथ शाखाओं में जाना जब छोटी थी। और इन्होंने कई अपने इनके इंटरव्यूज मैंने देखे जिसमें इन्होंने कहा है कि नाना की पर्सनालिटी का ह्यूज इम्पैक्ट इनकी पर्सनालिटी पे था, और नाना का इनमें कॉन्फिडेंस बहुत था। जब लोग कहते थे ये कुछ नहीं करेगी, तो नाना इनके कहते थे कि ये किसी दिन कुछ कर ले जाएगी। उसको उसके उससे अगर हम हट जाएं, तो हमने अमेठी में जो इनके बारे में रिसर्च किया, अमेठी में हमें ये बताया गया कि स्मृति ईरानी जो कहती हैं वो कर देती हैं, और जो नहीं कर सकती हैं वो बहुत पोलाइटली आपके मुंह पे कह देंगी कि ये काम आपका नहीं होने वाला है। इट्स अ रेयर क्वालिटी ऑफ ए पॉलिटिशियन, बिकॉज वी थिंक दैट पॉलिटिशियन तो सब काम में हाँ हाँ ही कर देते हैं। तो इसमें एक पिपरी गांव की घटना मैंने बताई है। पिपरी गांव में नदी से कट रहा थी, जमीन काट देती है नदियां। तो उसमें क्या था, स्मृति ईरानी जब उस गांव में गई तो वहां के लोगों ने कहा कि वी आर बाइकॉटिंग द इलेक्शन दिस टाइम इन 2014। तो स्मृति ने कहा कि आप बाइकॉट मत करो, यू डोंट वोट फॉर मी, बट यू प्लीज वोट। पर लोगों ने कहा नहीं, हमारे गांव में ऐसे हो रहा है, नदियों से नुकसान हो रहा है और रिवर्स आर हमें नुकसान कर रही हैं। तो स्मृति ने कहा ठीक है, मैं इसको ठीक करवा दूंगी। देन पीपल सेड कि पॉलिटिशियंस जो भी आता है वो यही कहता, बट दे नेवर केम बैक। स्मृति ने वही उन लोगों से कहा, विच वॉज टोल्ड बाय द ग्राम प्रधान ऑफ पिपरी टू मी, कि स्मृति टोल्ड देम कि मैं वापस आऊंगी। तो उन्होंने उन्होंने मुंह पे कहा कि अरे नेता लोग तो ऐसा ही बोलते हैं। एंड स्मृति ने वो प्रॉमिस को निभाया, एंड शी वेंट टू पिपरी आफ्टर लूजिंग इलेक्शन फ्रॉम अमेठी, एंड शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट फ्रॉम 2014 टू 2016 कि गांव को उस प्रॉब्लम से मुक्ति मिले। सीमेट उमा भारती जी जो उस समय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थी, पर अखिलेश जी सीएम थे, उनसे भी इनके पर वो काम नहीं हो पाया। बट व्हेन योगी बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 2017, दैट वर्क स्टार्टेड। तो लोगों ने मुझे पिपरी में बताया कि ये स्मृति ईरानी ने जो वहां वापस लौट के गई, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस या उनका भरोसा डेमोक्रेसी में वापस आया, एंड दे कास्ट देयर वोट इन 2019। गॉड नोज किन के फेवर में दिया होगा। Got it. Yes. So, sir, a question that is to understand your thought process as an author. So, I found that you wrote quite a lot of books on politics and election campaigns. Is there any specific reasons why you chose that genre? Any experience that? Siddharth, before 2014, I have written a book called Loktantra Ki Kasauti, and it was based on 2014 election. And after 2014, rather 2015, I have decided not to write on politics. So after writing on politics for good 15 years, I left political writing in 2015 and started writing on the politics of culture. Because the politics of this country, and if you compare with the politics and the politics of culture, politics of culture is more nuanced than the politics of the country. So वो मुझे, एंड एक ही काम करते करते आप लंबे समय तक बोर हो जाते हो। So from 2015 till 2019, 26 May, I have left political writing and start writing on cinema, culture, literature. But on 23rd May, I was watching television. Counting was going on for the Lok Sabha elections, 23rd May, and I found a very interesting fight in Amethi. Everybody on television was saying that Rahul Gandhi will win before the counting of the vote started in the morning.
आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ टेलीविजन चैनल्स एंकर्स जो बहुत चीख चीख के ये बात बता रहे थे कि यूपी में 2 ही सीट ऐसी है जहां से कांग्रेस की जीत तय है. वन इज रायबरेली एंड अनदर इज अमेठी. द pollster has also predicted that Rahul Gandhi will win in Amethi by a thin margin. This Access My India has predicted that plus minus 3%. But they have also predicted in favor of Rahul Gandhi. But when the counting of votes started on 23rd May, I started tracking the counting rounds, and 15 round I tracked and found that Smriti is winning in all the rounds. Not even a single round. She lost only a single booth or area which is called Jayas. वो वहां राहुल गांधी से सिर्फ 1600 वोट से एक बार पीछे हुई. बट द इंटायर काउंटिंग में शी वाज अहेड फ्रॉम राहुल गांधी. एंड बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैपन, राहुल गांधी कंसीडर्ड डिफीट in a press conference at around 5 o'clock in the evening. तब तक counting was going on in Amethi and Smriti Irani was leading by 38,000. But Rahul Gandhi conceded defeat. The official announcement happened at around 1:30 in the morning next day, midnight. And you can imagine that Rahul Gandhi has conceded defeat before the 6-7 hours before the official announcement. But till the official announcement was made by the 3 of the district magistrates, after consultation of 3 of the district magistrate, because Amethi Lok Sabha has the, जैसा मैंने शुरू में कहा कि 3 डिस्ट्रिक्ट के वहां रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, तो इन लोगों ने जब कहा, उसके बाद स्मृति ईरानी डिड नॉट गो टू कलेक्ट द सर्टिफिकेट. शी सेंट हर, उनके अपने जो उनका अपना बहुत दिनों से उनका एक सहयोगी है विजय गुप्ता, से सेंट विजय गुप्ता टू कलेक्ट द. एंड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट दिस, शी सेड कि मेरे सर्टिफिकेट्स पर सबका उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है. तो जो आपने पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात पूछी ना, मैंने स्मृति ईरानी की पर्सनालिटी में एक ट्रेट देखा है कि जब वो कुछ, when she achieves something, she moves on. Like जब उनको पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, she did not go there to receive the award. जब अमेठी में वो जीती, she did not go there to collect the certificate. तो इस तरह की 3-4 चीजें मुझे उनकी पर्सनालिटी में ये एक दिखाई देता है कि जब उनको कोई काम सौंपा जाता है, when she is assigned any work and she achieved that work, she moves on. तो ये उनकी पर्सनालिटी में मुझे एक चीज दिखाई पड़ी, which I thought कि I must underline while talking to you. And even when people text her, whether you're won, you're done, when they give that kind of a congratulatory moment before the vote count, she was not confident. She was overconfident. Rather, instead, she used to say, "Wait till the last Yes. votes counted." Right? You can say, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा she was over cautious, because the opponent is a person whose surname is Gandhi, है ना. So what I analyze is that Smriti Irani was over cautious because उनको लगता था कि कुछ ऐसी बात नहीं हो जाए कि लोगों को ये कहने का मौका मिल जाए. ये उन्होंने मुझसे नहीं किया, ये मेरा कंक्लूजन, मेरा इन्फरेंस है कि उनको ये लगता था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोगों को लगे कि बीजेपी वालों ने जबरदस्ती इनको जितवाना चाहा. उनको ये मालूम था दैट शी इज गोइंग टू विन. ये ऐसा उनके लोगों ने मुझे बताया कि उनको ये लगता था कि अमेठी की जनता ने ये तय कर लिया है कि उनका सांसद कौन होगा. बट
शी वांटेड कि ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाए, एकदम ठोक बजाकर जब सारे काउंटिंग हो जाए एंड कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव उस पर साइन कर दे, देन शी मेक ए स्टेटमेंट. और मुझे याद पड़ता है कि शी टॉक टू ANI एट अराउंड 2 o'clock in the morning. Got it. Yes. So, a last question from my side before we get on to the audience questions would be as a parting gift to us from the question and answer session. What are your thoughts on women political leaders in 2021? And is there an improvement in that representation? And what suggestions would you give? What advice would you give to young people who want to be aspiring politicians, women leaders? Very easy to advise. From your experience. It's very difficult to implement. So usually I don't advise. But आपने जो कहा ना कि फीमेल पॉलिटिशियन को किस तरह देखते हैं, मुझे लगता है कि इस देश में आने वाले दिनों में फीमेल पॉलिटिशियंस की संख्या बहुत बढ़ेगी. आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि लिटरेसी रेट जैसे जैसे उधर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जागरूकता बढ़ेगी और वो राजनीति में आएंगी. क्योंकि आप 90s की पॉलिटिक्स को देखें और अभी की पॉलिटिक्स को देखें, मतलब इस देश ने शरद यादव जैसे नेताओं को भी देखा है जो पार्लियामेंट में परकटी कहते हैं, जो बाल हेयर कट करा के महिलाएं जाती हैं उनको सी यूज टू कॉल परकटी, है ना. तो ऐसे लोगों को भी देखा और अब ऐसे लोगों को भी हम देख रहे हैं जो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं. ऐसे नेताओं को भी इस देश ने देखा है जहां लोग कहते हैं कि बलात्कार में गलतियां हो जाती हैं लड़कों से, है ना. तो अब हमारी सेंसिटिविटी, हमारी संवेदनशीलता वो शिक्षा के साथ और समाज के बदलाव के साथ बदल रही है. एंड आई कैन सी, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, आई कैन नॉट फोरकास्ट एनीथिंग, बट आई कुड सी कि आने वाले दिनों में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिक्स में आएंगी. वो हो सकता है 25 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, बिकॉज इन पॉलिटिक्स थिंग्स हैपन इन डिकेड्स. सो आई कैन से दैट द भविष्य है वो बहुत उज्जवल है महिलाओं का. Perfect. Thank you. Thank you. I'm sure people would be, there'll be a lot of women who are so happy to hear this, and they would really work on making a difference, making an impact in the nation. Sure. And it's a duty of the men also कि वो उनको आने दें. It's a duty of the fellow parliamentarians also that they, and fellow politicians also, that they encourage the female colleagues to come into politics. True, totally. Now we have a few questions that were sent to us earlier on the form. So if I may take that. Please. So the first question is from Kumar Sonal, and he is asking, what keeps these small strongholds like Amethi, Mainpuri, Rampur of Dinah's politicians still sustaining in the hinterlands? कुमार, मैं आपको एक घटना बताता हूँ. जवाहरलाल नेहरू was from Allahabad, now Prayagraj. He was born and brought up there. But when in 1952, when he had to fight parliamentary election, he left Allahabad and he went to Phulpur. Likewise, Indira Gandhi went to Raebareli. Sonia Gandhi went to Bellary. Rahul Gandhi went to Wayanad. Sanjay Gandhi came to Amethi. Can you see a fine line connecting all these constituencies? आप अगर देखो, all these constituencies are rural constituencies where the literacy rate, where the poverty rate, ये सब बहुत गरीब इलाके थे. और
अगर मैंने अभी आकलन नहीं किया है, विच यू हैव आस्क अबाउट रामपुर एंड ऑल, तो अगर आप आकलन करेंगे तो जहां जहां भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है ना, वहां गरीबी, बेरोजगारी और इस तरह की समस्याएं रही हैं, और लोगों को ये लगता है कि यही परिवार हमारे लिए, लाइक दे आर गॉड, एंड ये दे कैन हेल्प अस आउट, ये हमें मदद कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे चूज दोज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली, यू कैन से डायनेस्टी। और तो ये एक बड़ी फाइन और थिन लाइन आपको हर जगह दिखाई देगी इफ यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और डायनेस्टी कभी भी अर्बन इलाके से नहीं फलती फूलती है। इन इन इंडिपेंडेंट इंडिया डायनेस्टी पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, बिकॉज डायनेस्टी का बीज वहीं गलता है और वहीं से वृक्ष बनता है। Got it. Okay. So second question from आई होप कुमार आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Yeah. Second question from Pranay Singh is, will Rai Bareli be the next target for BJP, and how is Yogi's performance as the election is approaching? Since we are talking about my book, Dynasty to Democracy, for all these questions pertaining to the politics of Uttar Pradesh and pertaining to other constituency, you have to ask Siddharth to invite me again and have a discussion on the politics. Today, please excuse me that we are discussing Dynasty to Democracy, my book. So the questions pertaining to my book, I will be more than happy to answer. But Rai Bareli, yes, मुझे लगता है कि something is cooking around Rai Bareli. I have not followed, but since Sonia Gandhi is not keeping good health, तो बीजेपी कैन ट्राई देयर। एंड मुझे कुछ पॉलिटिकल, देखिए आज के जमाने में जो पॉलिटिक्स ऑफ नरेंद्र मोदी एंड ऑल चल रही है, इसमें यू कैन नॉट गेट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू वॉच द हैपनिंग्स and draw your inferences. So if you watch the activities around Rai Bareli, you can get some inferences that something is going to happen in Rai Bareli. True. And probably this question we could invite you for your second book, Dynasty to Democracy Part 2, Rai Bareli. No, I am not going to write again on Rai Bareli and all. Sure. So, Siddharth, people are inviting me to come to Bengal and write a book on the Bengal election, Nandigram Sangram. So I also decided not to write. अलग दूसरे मुद्दों पे लिखा जाएगा। No, the book, and it was why Amethi? I want to explain why Amethi, because अमेठी एक ऐसा इलेक्शन था where a sitting Congress president lost. Never in the history of independent India, or never in the history of Congress party of 138 years, no sitting Congress president had lost a parliamentary or any election. And Rahul Gandhi lost the election from Amethi while he was the Congress president. And this is also one of the reasons I choose to write a book on Amethi election, because I wanted to tell the people that what happened to this grand old party, जिसने हमें आजादी दिलाई, जिसने आजादी के समय जिसको लोग पार्टी से ज्यादा अपने परिवार का हिस्सा समझते थे, what happened in 70 years? So I just wanted to write about this political happening. तो इसीलिए मैंने अमेठी को चुना, और अब मैं रायबरेली या बारामती या कश्मीर ये करने वाला नहीं हूं मैं। True, understandable, yes. और फिर भी मैं ओपन रखना चाहता हूं, आई एम नॉट ए भविष्य वक्ता, एनीथिंग कैन हैपन। True.
So now we can open up क्योंकि मैंने anybody's question. 2014 में I have decided not to 2015 I have decided not to write on politics, and in 2019 I came with a book on hardcore politics. So पता नहीं, man proposes, God disposes. True. Now, to the audience, if you have any questions, please raise your hands and we will take your questions. Yeah, Siddharth, I would want to ask a question. I think I cannot raise a hand because, Sure. being the one who's recording this session along with you. नमस्ते सर, मेरा नाम दीपांशु है. मेरा सवाल ये है कि 2014 से 2019 के बीच में जब अमेठी में स्मृति ईरानी जी पहली बार हारी और 19 में जीती, तो इन 5 सालों में मैं ये मान सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के लिए इट वाज वेरी टफ टू पिक अ ट्रेंड बिकॉज ही इज considered to be a reluctant, lazy politician who doesn't really is able to capture what is happening on the ground. पर ऊपर से लेकर नीचे तक क्या पूरा का पूरा कांग्रेस का संगठन इस ट्रेंड को जरा सा भी पिक नहीं कर पाया कि राहुल गांधी 2014 से 19 के बीच में कुछ तो वहां पर डेवलपमेंट का काम करें, कुछ तो एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करें कि 19 में उनको इतनी करारी शिक्षा ना मिले वहां पे. तो राहुल गांधी जी इस ट्रेंड को नहीं समझ पाया, समझ में आता है, लेकिन पूरी की पूरी एक पार्टी एक सिंगल सीट के नैरेटिव को, जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी उनके लिए, उसको नहीं समझ पाई. ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी कैसे मुमकिन है? और मैं एज अ नॉर्मल वोटर सिटीजन ऑफ द कंट्री इस चीज को पचा नहीं पा रहा हूँ कि क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सिस्टम इतना ज्यादा विफल हो चुका है. दीपांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपका धन्यवाद. अगर आप अमेठी जाएंगे ना तो वहां, और अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो मेरे पीछे प्रणब मुखर्जी के 4 वॉल्यूम रखे हुए हैं उनके मेमोयर्स के, उसमें, और या कांग्रेस पार्टी का इतिहास जब उसके 100 साल पूरे हुए थे तब, 125 साल पूरे हुए थे तब लिखे गए थे. कांग्रेस पार्टी एक संगठित या कैडर बेस्ड पार्टी कभी नहीं रही. एक बार कोशिश की गई थी जब सेवा दल का गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी में कि ये आरएसएस की तर्ज पर वहां भी एक सेवा दल बनाया जाए, और नोबडी नोज वेयर दैट सेवा दल इज. कहीं होगी, ऑफिस भी होगा, पार्टी भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे, पर ये संगठन, ये कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है. यहाँ ना लोग नेता की ओर देखते हैं और यहाँ ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो नीचे तक फॉलो होते हैं, हर पार्टी में होते हैं. पर कांग्रेस में क्या होता है ना, अगर नेता सक्षम होता है, आपने जो एडजेक्टिव्स यूज किए राहुल गांधी के लिए, विच आई कैन नॉट यूज, कि रिलक्टेंट एंड लेजी पॉलिटिशियन, तो बट आई 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 मेरे हिसाब से वो कैजुअल पॉलिटिशियन है. तो वो क्या है ना कि राहुल गांधी के बारे में वहां लोगों ने ये बताया कि वो किसी भी कार्यकर्ता से नाराज होते थे तो उससे मुंह फुलाकर बैठ जाते थे. वो उसको पनिश नहीं करते थे, ना उसको, अगर खुश होते थे तो रिवॉर्ड देते थे. और अमेठी का जो संगठन था वो पिछले इतने सालों में इस बुरी तरह करप्ट हो गया कि वहां लोग स्कूल खोलने में लग गए, वहां पेट्रोल पंप लेने में लग गए, और एक ना दलाल संस्कृति वहां विकसित होती चली गई. तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि कांग्रेस के नेताओं से मिलने में उसके कार्यकर्ता भी घबराते हैं कि वो पॉकेट से पैसा ना निकाल लें. मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा लोगों ने मुझे बताया वहां. तो अगर किसी संगठन में ये हालत होगी कि कार्यकर्ता नेता के पास जाने में घबराने लगेगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पार्टी का चुनाव में क्या हाल होगा. बिल्कुल सर. और इसी के साथ एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये भी देखने को मिलती है कि 3 जो प्रमुख इंडिया में बैचलर पॉलिटिशियंस अगर हम कहें, यूपी के सीएम, देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी, तो एक तरफ मोदी जी और योगी जी जो 24/7 की पॉलिटिकल एक्टिविज्म और गवर्नेंस करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव राहुल गांधी जी जो कि बैचलर होने के बाद भी कैजुअल पॉलिटिशियन के तौर पे निकल के आते हैं. तो इस दिस ट्रेंड हेयर टू स्टे कि अब मोदी जी और योगी जी की 24 घंटे की पॉलिटिकल एक्टिविज्म और गवर्नेंस के बाद क्या अब एक वो बेंचमार्क सॉर्ट ऑफ सेट हो गया है जिसके अंदर अगर आप उस लेवल पर पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है तो आप शायद उतने अच्छे पॉलिटिकल रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे. आपने लास्ट में जो बोला है ना, डिलीवर, डिलीवरी इज द मूल मंत्र.
ये डिपेंड करता है कि आप बैचलर हैं या मैरिड हैं, इट डजेंट मैटर, है ना। नीतीश कुमार तो मैरिड थे, तीन टर्म से वहां बने हुए हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं, मतलब अगर, लेकिन दूसरी तरफ अगर बैचलर का देखेंगे तो नवीन बाबू को देख लीजिए उड़ीसा में, है ना। तो बैचलरहुड से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि डिलीवरी आप कैसा कर सकते हैं, और एज ए पॉलिटिशियन आपकी डिलीवरी कैसी है। जनता को अब डिलीवरी चाहिए। अब लफाजी का जमाना चला गया। अब आपके बाप दादा ने क्या किया था इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें क्या करके दे रहे हैं ये बताइए, और आप हमारी जिंदगी पे, आप हमारे लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इससे हमें मतलब है। आई डोंट केयर कि आप किस फैमिली से आते हैं या किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। आपके लीडरशिप में कोई भी पार्टी हमें क्या दे रही है ये डिपेंड करता है। या क्या वजह थी कि इन सब लोगों के रहने के बाद बीजेपी 3 जगह पे हार गई थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिलीवरी हमारी ठीक है और जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो अगर डिलीवर ठीक कर पा रहे हैं तो जनता उसको चुनती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। जनता ने असम में सब चीज होते हुए वहां के गोगोई साहब को 3 टर्म चुना। 15 साल तक वो असम के मुख्यमंत्री रहे क्योंकि डिलीवरी कर रहे थे। तमाम चीजों के बावजूद बंगाल में लोगों ने ममता बनर्जी को चुना, तो कुछ तो उनके लीडरशिप में दिखाई होगा जनता को। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डिलीवरी आप करोगे तो जनता आपको सर माथे पे रखेगी, और अगर आप लफाजी करोगे तो आपका वही हाल होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Perfect. Now we have a question from Vishoka. Vishoka, can you please unmute and ask? Okay. Namaste, sir. Am I audible? Yes, Vishoka, please go on. या सर, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस एज अ पार्टी, और बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर से, तो हो सकता है मैं कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज कर दूं। कांग्रेस एज अ पार्टी का जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ इसके बनने से और अब तक, मुझे ऐसा लगता है इस पार्टी का जो बीज जो मैंने पाया है वो यही है, सीको फैंसी पे, मोटे तौर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस की जो एक रेपुटेशन है बनाई गई है कि इंडिपेंडेंस दिलाया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिलीवरी ना भी करते हुए इसको एक, वो कहते हैं ना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि वो नहीं चल रही तो इसको वोट दे देते हैं। तो ये ट्रेंड मुझे स्टार्टिंग से एंड तक दिख रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि इसमें कभी एक स्टेबिलिटी, 1-2 लीडर्स आगे, नो डाउट, ये एक ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया, जहां की दूसरी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, को हैज टू डिलीवर एवरी टाइम टू गेट ओवर देयर। तो क्या ये ट्रेंड अब चेंज हुआ है मोदी जी के आने के बाद, कि बीजेपी की तरफ अब एक इमेज आई है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टी है? कहीं ना कहीं ये शिफ्ट जो मुझे लग रहा है, क्या ये सच में ऐसा है? क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं तो एक बाहर तरीके से देखी हूँ, आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इसमें आप क्या कहेंगे? विशोका, मुझे लगता है कि आपकी पैदाइश 1970 के बाद की है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ, और वो इसलिए कि 70 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए ना, कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर सिर्फ 2009 में जीती। उसके पहले ये दूसरे की गलतियों की वजह से पावर में आती रही। 77 में अगर आप याद करिए तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, और एक मोरारजी देसाई की सरकार 2.5 साल में, 2.25 साल में गिर गई, और इतनी गलतियां की उन्होंने कि 80 में इंदिरा गांधी वापस आ गई। वो इंदिरा गांधी जिसको लोगों ने हेट करके 77 में हरा दिया था, वो 3 साल में वापस आ गई। क्यों? क्योंकि गलतियां हुई। 84 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इस वजह से कांग्रेस पार्टी बम्पर मेजोरिटी से वापस आ गई। ठीक है। 91 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। 89 में वीपी सिंह की सरकार बनी और उसके बाद 2 साल में वो सरकार गिर गई। 91 में राजीव गांधी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 96, 98, 99 ये सब का दौर आप लोगों ने देखा कैसे सरकार बनी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के जी हार गए। क्यों हार गए? ये सबको पता है कि शाइनिंग इंडिया का ऐसा नारा लगा कि उस शाइन में ही डूब गई सरकार। 2009 में अपने बलबूते पे कांग्रेस जीती, क्योंकि पिछले 5 साल से सरकार में रहने के बाद
कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, उसमें किसी की गलती नहीं थी। अब भी कांग्रेस पार्टी को अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर देखें तो मुझे कहीं सड़क पे नजर नहीं आती, कहीं फाइट करते हुए, एजिटेशन करते हुए कुछ नजर नहीं आता। अब भी वो इंतजार कर रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार से कोई गलती हो और जनता उनको बिठा दे कि चलो मोदी ने गलती कर दी, अब कांग्रेस को एक बार फिर से चांस दे देते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी वही है। तो अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मजबूत नेतृत्व से उस तरह, जैसे आप देखते हैं ना कि एक कहावत है, बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, तो बिल्ली छीके की ओर देखते रहती है कि कब ये गिरे। तो अभी कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसी ही है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Vishoka. So we'll take one more question, if any. There are any questions? Last one. नहीं है। Okay, so sir, I know that you have one more program to attend, so we'll start with the conclusion part. One thing that happened is when Dipanshu told me that yes, you have agreed to come, I was like excited, because elections and how it is, the politics behind it was always a thing that always aroused my curiosity all the time. So, and this book really gave me a very strong insight into what was happening in Amethi, and it was not purely filled with data alone, but with the entire story-like narration, which made me really understand the entire situation there. And thank you so much for writing the book, sir. And it was wonderful having you. And we really hope that we can bring you again for various other topics, because politics of, as you said, politics of culture is more nuanced than the politics of India. And I believe the politics of culture will be way more important in the coming set of years from what I'm seeing around. Right. So we would like to invite Thank you, Siddharth. Thank you for inviting me. Thank you, Dipanshu, for inviting me. Thank you so much. आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं. Please keep on doing this, because बुक्स पर काम होना चाहिए, किसी भी किताब पर। मुझे लगता है कि लोगों को किताब खरीदनी चाहिए, और किताबों के साथ हमारा जो आपने बुक लवर्स, यू पीपल आर बुक लवर्स, आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू पीपल आर बुक लवर्स। तो मुझे लगता है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं या इस कार्यक्रम को जितने भी लोग सुनेंगे, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पुस्तक खरीदिए, सिर्फ मेरी ही नहीं, जो आपको मन हो वो किताब खरीदिए, क्योंकि किताब सबसे अच्छे दोस्त हैं। और आज कोरोना संक्रमण के दौर में जब आप दोस्तों से गले नहीं मिल सकते, किताब को अपने सीने पर रखकर आप उसकी गर्माहट को महसूस कर सकते हैं, उस दोस्त के साथ समय बिता सकते हैं। तो कोई कोरोना, कोई संक्रमण, कोई वायरस किताबों से आपकी दोस्ती को खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए प्लीज 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 गो एंड बाय बुक्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू।